Okay, dear learners, welcome to the online class of Odisha State Open University. And today our topic is SEBI and stock exchange. Okay, so stock exchange is what we can call is a market where securities are bought and sold. Okay, all of you know the stock prices reflect the investor's opinion that what the company's earning will be in the future. Okay, and what SEBI means Security Exchange Board of India. It is the regulator of the securities as well as commodities market in India, and it is owned by government of India. Okay, so today our topic is SEBI and stock exchange, and we will be covering organizations and objectives of SEBI, guidelines of SEBI, powers and role of SEBI, growth and role of stock exchange in India, and rights of shareholder. Okay, again I welcome all the learners to this online session, and for this our resource person is Dr. Biswaranjan Misra sir, and who is the assistant professor of Utkal University, Department of Commerce. And our in this session, our technical support is Minati Madam. And before starting of this session, I would like to request all the participants to mute their microphones and please don't present anything during the session. Okay. And another thing, if you have any questions or queries, you can ask at the end of the session either by typing it in the chat box and or by unmuting your microphones, and all your queries and questions will be answered by our resource person at the end of the session. But during this session, don't unmute your microphones. And again, welcome you, and may I request Dr. Biswaranjan Misra sir to please start the session. Please, sir. Okay, sir. Sir, can I have my slides? Sure, sir. Okay. Sir, is it visible? Oh, yes. Yes, sir. It's Yes, sir. Yes. visible. Okay, sir. Okay. So, friends, today we will discuss regarding Security Exchange Board of India and stock exchanges. In this presentation, I will cover the following topics. Next slide. Next slide. Okay. We will cover Unit 11, Unit 12, Unit 13, Unit 14 and Unit 15. Unit 11 is regarding organization and objectives of SEBI. Then we will discuss regarding guidelines of SEBI. Next we will discuss power and role of SEBI. Next we will go to stock exchange. We will discuss growth and role of stock exchange. Next we will go for rights of shareholders. We will cover three major topics today: SEBI, stock exchange, and the rights of shareholders. First we will go towards SEBI. Next slide, please. Before discussing SEBI, let me first tell you what is a fish market. A fish market is a market where different types of fish are bought and sold. In a fish market, there are different buyers of fish, there are different sellers of fish. The price of any variety of fish depends upon the demand and supply of the fish. If the demand for a fish is more in comparison to its supply, its price will go up. If supply of a fish is more in comparison to its demand, then its price will go down. If you understand the fish market, next I will go for finance market. What is a financial market? A financial market is a market where different types of finance are bought and sold. There may be short-term finance, there may be long-term finance. So the market where short-term finance is bought and sold is known as money market. So money market is a market for short-term finance. What is short-term finance? It's a market for finance less than 1 year. तो मनी मार्केट में 1 साल से कम ईयर का फाइनेंस मिलता है.
खरीदा जाता है, बेचा जाता है। नेक्स्ट, द मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज बॉट एंड सोल्ड। व्हाट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस? फाइनेंस फॉर मोर देन 1 year, that is known as capital market. So we have discussed financial market where finance is bought and sold. Financial market is of two types, money market and capital market. Money market is a market for short term finance. The money market is regulated by the Reserve Bank of India or RBI. Now next market is capital market. The capital market is a market for long term finance, and this capital market is regulated by SEBI. So what is SEBI? SEBI is the regulator of capital market इन इंडिया। सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। तो अभी मैं थोड़ा रेगुलेटर के बारे में समझाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटर? आप क्रिकेट का मैच देखे होंगे, क्रिकेट के मैच में दो प्लेयर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं। बैट्समैन और बॉलर के बीच में खेल होता है, लेकिन ये खेल के बीच में एक आदमी खड़ा होता है, उसका नाम है अंपायर। आप अंपायर को पता होगा। तो अंपायर खेलता नहीं है, वो देखता है जो खेल हो रहा है वो रूल्स रेगुलेशन फेयर प्ले के तरह होता है या नहीं, खेल फेयर प्ले हो रहा है या नहीं। तो जो अंपायर का रोल है, उसी तरह से सेबी का रोल है फाइनेंशियल मार्केट में। सो फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, वेदर द मार्केट इज परफॉर्मिंग एज पर रूल्स रेगुलेशंस, सो सेबी इज ए वॉचडॉग ऑफ कैपिटल मार्केट। सो हम सेबी के बारे में अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। सेबी क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। तो सेबी जो है, ये सेबी जनरली 1988 में बना था। ये पहले, सेबी से पहले इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था CCI, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। ये कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता था। तो इसका मतलब हर चीज CCI के परमिशन के बिना कैपिटल मार्केट में हो नहीं सकता था। लेकिन कंट्रोलर से रेगुलेटर का शिफ्ट हुआ जब सेबी बना। जब सेबी बना, ये CCI को डिसॉल्व कर दिया गया और नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है सेबी। CCI कंट्रोलर था, सेबी कंट्रोलर नहीं है, सेबी रेगुलेटर है। सो सेबी इज ए वॉचडॉग। ओके, नाउ सेबी जो बना, सेबी एक्ट 1992 के हिसाब से बना। इंडियन पार्लियामेंट में 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ और सेबी एक्ट पास होकर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना एज ए रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो मेन पर्पज जो सेबी बना, उसका मेन पर्पज दो था। पहला था प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाएंगे कैपिटल मार्केट में, उसका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा, ये सेबी का मेन पर्पस था। दूसरा था, सेकेंड इज हाउ द सिक्योरिटीज मार्केट विल बी डेवलप्ड। तो सिक्योरिटी मार्केट कैसे डेवलप होगा इंडिया में, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाने का काम सेबी के पास था। और हाउ द सिक्योरिटी मार्केट विल बी रेगुलेटेड। सो सेबी का दो इंपोर्टेंट पर्पज है। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट और इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। सेकेंड वन इज द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, नाउ व्हाई सेबी इज फॉर्म, में बताया था सेबी फॉर्म होता है ये दो काम के लिए। कैपिटल मार्केट में 3 I फेमस है, 3 I। 3 I आर द मेजर प्लेयर्स इन ए कैपिटल मार्केट। फर्स्ट I है इश्यूअर, सेकेंड I इज इन्वेस्टर, थर्ड I इज इंटरमीडियरी। तो व्हाट इज इश्यूअर? इश्यूअर कौन है? इश्यूअर जो सिक्योरिटी इश्यू करता है, जिसको पैसा चाहिए, दे आर टेकर ऑफ मनी, इश्यूअर्स। सेकेंड, इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाएगा उसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। और इंटरमीडियरी क्या है? तो इश्यूअर और इन्वेस्टर्स के बीच में जो मिडिल मैन है और जो काम करते हैं इन दोनों का लिंक करवाने में, उन सबको बोलते हैं इंटरमीडियरीज। तो सेबी ये तीनों ग्रुप का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। पहले बना है इश्यूअर। ईश्वर के लिए सेबी क्या करता है? ईश्वर के लिए सेबी एक अच्छा कैपिटल मार्केट देता है जहां पर ईश्वर जब चाहे तब, जितना चाहे उतना अपने हिसाब से कैपिटल उठा सके।
So it gives him a safe capital market to the issuer. इन्वेस्टर्स को क्या देता है? इन्वेस्टर्स को सेबी एक ऐसा मार्केट देता है जहां पर वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। और इंटरमीडियरी को क्या सेबी देता है? सेबी इंटरमीडियरी के लिए एक प्रोफेशनल फील्ड क्रिएट करता है जहां पर इंटरमीडियरीज प्रोफेशनल वे में, फेयर मैनर में ये दोनों के बीच में मिडिल मैन का काम करके अपना सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो सेबी कैटर टू द नीड्स ऑफ इश्यूअर, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेबी? सेबी में कौन कौन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेक्शन 4 ऑफ सेबी एक्ट 1992 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेबी। ये बोलता है सेबी में एक चेयरमैन होगा और वो चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? सेबी का चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। सेकेंड, सेबी में 2 ऑफिशियल्स होंगे। वो 2 ऑफिशियल्स जो होंगे, सेबी का 2 ऑफिशियल्स, वो बोर्ड में, बोर्ड मतलब बहुत सारे लोगों को लेकर बोर्ड बनता है। पहला एक चेयरमैन होंगे, दूसरा 2 ऑफिशियल्स होंगे। जो ऑफिशियल्स होंगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। वो 2 ऑफिशियल्स में से एक ऑफिशियल्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देगा और एक ऑफिशियल्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देगा। तो एक चेयरमैन, 2 ऑफिशियल्स, फिर एक ऑफिशियल और एक ऑफिशियल होगा जिसको नॉमिनेट करेगा आरबीआई। तो सेबी में कितना आदमी हो गया? चेयरमैन, 2 ऑफिशियल्स, एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और एक नॉमिनी हुआ आरबीआई का। इसके अलावा 5 और मेंबर को नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें से 3 मेंबर ऐसे होंगे जो होल टाइम मेंबर्स होंगे। तो 5 और मेंबर्स होंगे जिसमें 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा स्टाफ्स वगैरह ही, ये है बोर्ड। सेबी का बोर्ड कंसिस्ट होता है इसको। These are the apex body for taking different decisions at SEBI. Chairman, 2 officials और 1 officer nominated by RBI और 5 other members जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। हेलो सर, अभी लाइव क्लास है। हेलो, सेबी का हमारे हेडक्वार्टर, पास दो लिंक आए थे। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी का 4 रीजनल ऑफिसेस है। समझ में आ रहा है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका 4 रीजनल ऑफिसेस है। 4 रीजन में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में 4 रीजन में 4 रीजनल ऑफिसेस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? मैं बताया था सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव्स तो मैं 2 बताया था। क्या? पहला ऑब्जेक्टिव्स में बताया था सेबी बना था प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर, दूसरा बताया था रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। लेकिन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, एक एक करके पढ़ेंगे उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, इट्स एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में जितना है उसका रेगुलेटर सेबी है। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मैं थोड़ा इसको उसके बारे में तो डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं जब कोई कंपनी पैसा उठाता है, मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करता है, वो कुछ सिक्योरिटी इश्यूज करता है। सिक्योरिटी या इधर शेयर्स में हो सकते हैं, डिवेंचर्स में हो सकते हैं, बॉन्ड्स में हो सकते हैं। तो कंपनी ये सब इश्यू करके पैसा उठाता है। जिस मार्केट में पैसा उठाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट। प्राइमरी मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट में कंपनी शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी पैसा उठाता है, शेयर इश्यू करता है, शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं। कंपनी डिवेंचर इश्यू करता है, डिवेंचर होल्डर्स डिवेंचर खरीदते हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट और आईपीओ मार्केट, इनिशियल पब्लिक इश्यू मार्केट, आईपीओ मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट्स में पहले शेयर इश्यू होता है।
एक बार शेयर इशू हो गया, शेयर होल्डर लोग, कंपनी उस शेयर का लिस्टिंग कर देता है। लिस्टिंग कहां पर करता है? स्टॉक एक्सचेंज में करता है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गया उस शेयर का, वो शेयर अभी स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट, एक शेयर होल्डर दूसरा किसी को बेचेगा, दूसरा तीसरे कोई आदमी को बेचेगा, तीसरा चौथे आदमी को बेचेगा। इसका मतलब शेयर होल्डर के बीच में उसका क्या होता है? ट्रेड होता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सो स्टॉक एक्सचेंज डज प्लेस द रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जितना स्टॉक एक्सचेंजेस है, वो सारा स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। सेकेंड, सेबी का दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देता है, उनका राइट का प्रोटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर इंटरमीडियरीज। मैं बताया था बहुत सारा इंटरमीडियरीज है। इंटरमीडियरीज कौन है? जो इश्यूअर और इन्वेस्टर्स के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। जैसे ब्रोकर एक इंटरमीडियरी है, इश्यू हाउस एक इंटरमीडियरी है। हम पढ़ेंगे ये सारा इंटरमीडियरीज को ऊपर कंट्रोल भी सेबी करता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स एजुकेशन। सेबी भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेट करता है, उनके बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी लाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट है, पहले किस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, किसी कंपनी का डिबेंचर के इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सा चीज देखना पड़ता है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीज को ध्यान रखकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कि हम एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स बने। तो सेबी भी कंज्यूमर एजुकेशन या इन्वेस्टर्स एजुकेशन करना सेबी का भी एक ऑब्जेक्टिव है। और एक ऑब्जेक्टिव है मार्केट रेगुलेशन। मार्केट में फेयर प्ले हो। फेयर प्ले मतलब जो इन्वेस्टर्स और इश्यूअर्स के बीच में लेन देन होता है उसमें कोई माल प्रैक्टिस ऐसा ना हो, कोई रूल्स रेगुलेशन ना तोड़े, कोई सर्कुलर ट्रेडिंग, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, कोई प्राइस रिगिंग, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सब ना हो, सर्कुलर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, ये सब चीज ना हो, इसका ध्यान भी सेबी रखता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेबी। अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी का क्या क्या फंक्शंस है? सेबी का जो फंक्शंस है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा तीन पार्ट? पहला है डेवलपमेंटल फंक्शन, दूसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन, तीसरा है रेगुलेटरी फंक्शन। पहले डेवलपमेंटल फंक्शन, फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन, फिर रेगुलेटरी फंक्शंस। एक एक करके सेबी का फंक्शंस को अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज डेवलपमेंटल फंक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट इज डेवलपमेंटल फंक्शन? सेबी कोशिश करता है क्या करने के लिए? प्रमोट और डेवलप करने के लिए स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट कैसे दिन व दिन बढ़े, उसको डेवलप करे। पहले स्टॉक मार्केट में ओपन आउट क्राई सिस्टम था। व्हाट इज ओपन आउट क्राई? लोग जाते थे स्टॉक मार्केट पर, शेयर को खरीदते थे, बेचते थे। इसका मतलब सपोज आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ चीज खरीदना पड़ता था पहले, तो आपको मुंबई जाकर वहां पर खरीदना पड़ता था। समझ में आ गया? वहां पर बड़े बड़े पीठ होते थे, लोग बोली लगाते थे, मेरे को खरीदना है, मेरे को खरीदना है। आप ब्रोकर्स को कॉन्ट्रैक्ट करते जाकर वहां पर, इसका मतलब फिजिकली आपको वहां पर जाना पड़ता था। तो स्टॉक एक्सचेंज का जगह तो छोटा था, इसीलिए वॉल्यूम भी कम था। तो धीरे धीरे जब सेबी बना, सेबी लाया इंडिया में कैसे इंटरनेट ट्रेडिंग होगा। इंटरनेट ट्रेडिंग मतलब स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो आज के डेट में कोई खरीदने के लिए, बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को जाना नहीं पड़ता है। आज के डेट में स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कोई आदमी ही नहीं है, वहां पर क्या है? सर्वर है, बड़ा सर्वर बैठा हुआ है। वो सर्वर से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप सेलिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, और सर्वर उसको मैच करके प्राइस देता है, ट्रेड को सेटल करता है। सब कुछ सर्वर करता है, कंप्यूटर का सर्वर है। तो बीएससी में आप जाएंगे, अभी कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, कुछ 2-4 रूम होगा और बड़ा सर्वर होगा। तो अभी सबके सब ट्रेडिंग क्या बन गया?
इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग या स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो ये चीज आने से बहुत सारा वॉल्यूम बढ़ा, बहुत सारा नया बायर्स आए, बहुत सारा नया सेलर्स आए, तो मार्केट डेवलप होने लगा। पहले कुछ इशू में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स होता था। अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? अगर आपका शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज नहीं होगा तो अंडर राइटर गारंटी देता था मैं वो शेयर को खरीदूंगा। आपका शेयर अगर बेचा नहीं गया, जितना बेचा नहीं गया उतना क्या करेगा? अंडर राइटर खरीदता था, वो गारंटी देता था। लेकिन वो अंडर राइटर कुछ कमीशन लेता था, तो अंडर राइटिंग के चलते कॉस्ट ऑफ इश्यू बहुत बढ़ जाता था। तो आज के डेट में सेबी बहुत सारा कंपनी के लिए अंडर राइटिंग ऑप्शनल कर दिया है। ऑप्शनल मतलब आप अगर चाहे, ये सब कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो अंडर राइटिंग कर सकते हैं, या नहीं तो अंडर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ कंडीशन अगर कोई कंपनी फुलफिल करता है उसके लिए अंडर राइटिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शनल हो जाएगा। इसी तरह से सेबी क्या करता है? रेगुलर ट्रेनिंग करता है। किसका? इंटरमीडियरीज का। इंटरमीडियरीज में बताया था ब्रोकर्स, ब्रोकर्स इज इंटरमीडियरी, इशू हाउस इज इंटरमीडियरी, मर्चेंट बैंकर इज इंटरमीडियरी, देयर आर मेनी इंटरमीडियरीज। उन सबका रेगुलर ट्रेनिंग करता है सेबी। ट्रेनिंग करके उनको बताता है कैसे प्रोफेशनल मैनर में आप मार्केट को चला सकते हैं। ये सब काम सेबी क्यों करता है? बिकॉज सेबी का एक बड़ा फंक्शन है हाउ टू डेवलप द फाइनेंशियल मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन? सेबी देखता है कैसे मार्केट में क्या होगा? कोई माल प्रैक्टिस नहीं होगा। माल प्रैक्टिस मतलब देयर विल बी फेयर प्ले। जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं ना, अंपायर देखता है आप बॉल को खराब कर रहे हैं तो बॉल को खराब करेंगे तो फेयर प्ले नहीं होगा। उसी तरह से देयर विल बी फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब देयर विल नॉट बी एनी आर्टिफिशियल प्राइस रिगिंग और देयर विल नॉट बी एनी सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या है? ए बेचा बी को, बी बेचा सी को, सी बेचा डी को, डी बेचा ई को, ई बेचा एफ को, एफ बेचा ए को। इस तरह से अपने बीच में ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग करके क्या करते हैं? प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल प्राइस रिगिंग या सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग नहीं होगा, कोई डब्बा ट्रेडिंग नहीं होगा। डब्बा ट्रेडिंग मतलब आउटसाइड द एक्सचेंज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। डब्बा ट्रेडिंग, कोई डब्बा ट्रेडिंग नहीं है, कोई सर्कुलर ट्रेडिंग नहीं है, कोई अल्गो ट्रेडिंग नहीं है। अल्गो ट्रेडिंग मतलब कोई आदमी ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, कंप्यूटर्स बैठा हुआ है, सॉफ्टवेयर के थ्रू में वो लोग बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर देकर कुछ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। देयर इज अल्गो ट्रेडिंग। इस तरह का सब माल प्रैक्टिसेस मार्केट में ना हो, ये सबको रोकने के लिए सेबी कोशिश करता है। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ व्हाट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी भी, हाँ, डब्बा ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आज के डेट में आप जो ट्रेडिंग करेंगे वो ट्रेडिंग सब कहां पर होता है? ट्रेडिंग सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेडिंग होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसी स्टॉक एक्सचेंज में ही स्टॉक का ट्रेडिंग होगा। बहुत सारा ब्रोकर अपने बीच में बैठकर एक फॉल स्टॉक एक्सचेंज बनाए, मतलब आर्टिफिशियल स्टॉक एक्सचेंज। वो क्लाइंट को बोल रहे हैं आपका परचेज सेल कहां पर हो रहा है? बीएसई में हो रहा है, लेकिन बॉम्बे एक्सचेंज में ना होकर ब्रोकर के बीच में हो रहा है। इसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग, आउटसाइड द ट्रेडिंग ऑफ द मार्केट, आउटसाइड द ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, उसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। तो डब्बा ट्रेडिंग ना हो, डब्बा ट्रेडिंग इज बैन। तो इस तरह से बहुत सारा ट्रेडिंग को, जो फॉल्स प्रैक्टिसेस है, आर्टिफिशियल प्राइस रिगिंग, डब्बा ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, हम सब बात करेंगे धीरे धीरे, ये सब जैसे मार्केट में ना हो, इसको देखता है सेबी। नेक्स्ट, तो सेबी का मेन पर्पज ये है टू प्रोटेक्ट द मार्केट, और ये सब अगर सेबी आइडेंटिफाई करता है तो उसके अगेंस्ट में पेनल स्टेप्स भी सेबी ले सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज रेगुलेटरी फंक्शन। मैं बताया था सेबी का मेन पर्पज है टू रेगुलेट व्हाट? टू रेगुलेट द सिक्योरिटी एक्सचेंज। इसीलिए रेगुलेशन करने के लिए किसको रेगुलेट करता है? तीन चीजों को, इन्वेस्टर्स को, इशूअर्स को और इंटरमीडियरीज को। इन सब के लिए सेबी धीरे धीरे
कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, गाइडलाइंस, ये सब लाता है। सेबी इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करता है, सेबी ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है, सेबी ट्रस्टी को रेगुलेट करता है, सेबी मर्चेंट बैंकर्स को रेगुलेट करता है, सेबी म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। सेबी रेगुलेट करता है अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को लेता है, टेक ओवर बिड्स, टेक ओवर, एक कंपनी दूसरे कंपनी को ले लेना, इसको बोलते हैं टेक ओवर बिड्स। सेबी पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करता है ये सब हो रहा है या नहीं, इसका मतलब देयर इज रेगुलेटरी फंक्शन। सेबी का 3 फंक्शन है। फर्स्ट डेवलपमेंटल फंक्शन, डेवलप करने की कोशिश करता है सिक्योरिटी मार्केट को। सेकेंड होता है रेगुलेटरी फंक्शन, और एक पढ़ाया था कौन सा फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये सारा फंक्शंस को करने के लिए सेबी के पास कुछ पावर होना चाहिए। ये सब पावर सेबी एक्ट में सेबी को दिया गया है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी? सेबी क्या कर सकता है? सेबी वो सब काम कर सकता है जिससे डेवलपमेंट हो किसका, सिक्योरिटीज मार्केट को। सेबी के पास पावर है टू रेगुलेट माल प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी के पास पावर है स्टॉक एक्सचेंज का बाई लॉ को अप्रूव करने के लिए। व्हाट इज बाई लॉ? बाई लॉ का मतलब स्टॉक एक्सचेंज का इंटरनल रूल रेगुलेशंस को बोलते हैं बाई लॉ। तो सेबी क्या कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज का बाई लॉ को अप्रूव करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को इंस्ट्रक्ट करेगा। तो अगर बाई लॉ में कुछ कमियां हैं, वो कमियां को स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, उसको चेंज करेगा। सेबी क्या करेगा, ये स्टॉक एक्सचेंज से पीरियोडिकली रिटर्न्स मंगाएगा, क्या क्या ट्रेडिंग हो रहा है, क्या क्या नहीं, सब डिटेल्स मेरे को दो। इसका मतलब जितना स्टॉक एक्सचेंज होंगे वो सब रिपोर्ट करेंगे किसको, सेबी। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। सेबी के पास पावर है वो स्टॉक एक्सचेंज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। सेबी के पास पावर है वो इंटरमीडियरीज, मैं बताया था इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, मर्चेंट हाउसेस और इश्यूअर्स, इन सबका इश्यू हाउसेस, इन सबका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी सेबी क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। सेबी के पास पावर है रजिस्ट्रेशन करने का लिए, किसको रजिस्ट्रेशन करेगा, ब्रोकर का, इंटरमीडियरीज का, मतलब सारा इंटरमीडियरीज पहले सेबी के पास रजिस्टर होंगे, फिर स्टॉक मार्केट में क्या करेंगे, प्ले करेंगे। नेक्स्ट, सेबी के पास पावर है टू फॉर्मुलेट एनी अदर लॉ व्हिच इट फील्स नेसेसरी फॉर स्मूथ फेयर कंडक्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सेबी के पास भी सिविल कोर्ट का पावर है। सिविल कोर्ट का पावर, जैसे कोर्ट है, सेबी इटसेल्फ एक सिविल कोर्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो सेबी क्या कर सकता है, आज ए कोर्ट, वो क्या करेगा, किसी को सम्मन कर सकता है, तुम आकर मेरे पास हाजिरी दो, इसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन करो। कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट की तरह सेबी क्या कर सकता है, उनको सम्मन करेगा, वो जब आएंगे उनका ओथ लेगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। इसका मतलब सेबी के पास एक छोटा सिविल कोर्ट का पावर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। क्रिमिनल कोर्ट का पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ सिविल कोर्ट का पावर है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट है, मैं बताया था सेबी और क्या कर सकता है, सेबी के पास पावर है ये माल प्रैक्टिस रोकने के लिए, फेयर प्ले जो नहीं हो रहा है उसको रोकने के लिए सेबी बहुत सारा और काम कर सकता है। अगर सेबी को पता चला एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में माल प्रैक्टिसेस ज्यादा हो रहा है, आर्टिफिशियल प्राइस रिगिंग हो रहा है, उसका सर्कुलर ट्रेडिंग हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज को एक्सचेंज में ट्रेडिंग होने से बैन कर देगा या सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड कर सकता है, बैन कर सकता है। किसी आदमी को मार्केट में खरीदने के लिए, बेचने के लिए भी बैन कर सकता है। आइदर ऐसे बैन करेगा तू खरीद से नहीं सकता है, आइदर ऐसे बैन करेगा ये ब्रोकर ठीक काम नहीं कर रहा है, फेयर प्ले नहीं कर रहा है, उसको बैन करेगा, तुम बेच नहीं सकते हो। या नहीं तो किसी आदमी को बोलेगा तुम 5 साल तक स्टॉक एक्सचेंज में घुस नहीं सकते हो, रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। तो सेबी को पूरा पावर दिया गया है जैसे कि वो रेगुलेट कर सके किसको, सिक्योरिटीज मार्केट को। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सेबी के पास और क्या क्या पावर है। सेबी के पास और सारा पावर दिया गया है। द बोर्ड हैज द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट और एनी कंपनी इन रिलेशन टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। किसी भी कंपनी को, किसी भी आदमी को वो क्या कर सकता है, इंटरेस्ट समन कर सकता है अगर वो कौन से मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में फेयर प्ले नहीं कर रहा है। तो सेबी के पास पूरा पावर है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। सेबी के पास पूरा पावर है टू प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी के पास पूरा पावर है टू एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। With this, we complete our Unit 11 that is regarding SEBI. SEBI का अभी हम पढ़ेंगे Unit 12 that is guidelines of SEBI. SEBI बहुत सारा गाइडलाइंस इशू करता है, किसके लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ये जो गाइडलाइंस मतलब रूल्स रेगुलेशंस, इसको फॉलो करना पड़ेगा। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, क्या क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, रूल्स रेगुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 आईज, इश्यूअर्स के लिए गाइडलाइंस, इन्वेस्टर्स के लिए गाइडलाइंस। नेक्स्ट गाइडलाइंस किसके लिए, इंटरमीडिएरीज के लिए गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस से भी इशू करता है, पहला गाइडलाइन से भी इशू किया था 11 जून 1992 में। फिर ये गाइडलाइन धीरे धीरे अमेंड होने लगा है, नया गाइडलाइंस आ रहा है। सेबी जनरली जो गाइडलाइंस देता है 2 टाइप का इशू के ऊपर देता है। पहला इशू होता है पब्लिक इशू, मैं बताया था, और एक होता है राइट इशू। राइट इशू में सेबी का गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगा प्रोवाइडेड द राइट इशू वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 50 lakhs, बट सेबी गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल पब्लिक इशूज, but SEBI guidelines are applicable in context of right issue if the value exceeds 50 lakhs. Next slide. अच्छा, सेबी किस किस चीज के बारे में गाइडलाइंस इशू किया है। सेबी में बताया था गाइडलाइन इशू करता है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इन प्राइमरी मार्केट, इन सेकेंडरी मार्केट। अभी बताया था प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज ए मार्केट ऑफ न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मतलब यहाँ पर कंपनी और शेयर होल्डर्स होते हैं, इससे डील बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। ये फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी मार्केट है कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में। और एक सेकेंडरी मार्केट और सेकेंड हैंड मार्केट जहां पर इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। ओके, आईपीओ मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, इन दोनों के लिए क्या करता है, सेबी गाइडलाइंस होता है। सेबी का गाइडलाइंस होता है आईपीओ के लिए, सेबी का गाइडलाइंस होता है सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए। सेबी का गाइडलाइंस होता है ब्रोकर्स के लिए। हुई ब्रोकर, मैं बताया था स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग डायरेक्टली जाकर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू गो थ्रू ए ब्रोकर्स। आपको खरीदना है आप ब्रोकर के थ्रू जाएंगे खरीदेंगे, आप बेचना है आप ब्रोकर्स के थ्रू जाएंगे बेचेंगे। ब्रोकर्स आर द पार्टीज who are entitled to trade on behalf of their clients। तो आप एक ब्रोकर को अप्रोच करेंगे और ब्रोकर इसीलिए कुछ पैसा लेता है, इसको बोलते हैं ब्रोकरेज। तो सेबी ये ब्रोकर्स के लिए बहुत सारा गाइडलाइंस इशू किया है, ब्रोकर्स को इसको सबको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट सेबी हैव इशूड गाइडलाइन रिगार्डिंग FII। व्हाट इज FII बात करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है, पहले समझ लेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पहले इन्वेस्टर समझ में आ गया जो इन्वेस्ट करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल मतलब वो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जैसे एक म्यूचुअल फंड एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे एक यूनिवर्सिटी फंड एक इंस्टीट्यूशन है, पेंशन फंड एक इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग कंपनी एक इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी एक इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट एक इंस्टीट्यूशन है। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और वो फॉरेन का है, आउटसाइड इंडिया है, तो उस तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये FII इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा डालने से पहले सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन का FII इंडियन मार्केट में पैसा नहीं डाल सकते। बात समझ में आ गया। तो सेबी का गाइडलाइंस भी FII के ऊपर होता है। नेक्स्ट सेबी का गाइडलाइंस है बोनस शेयर्स के ऊपर।
व्हाट इज बोनस शेयर्स में बात किया था। बोनस शेयर क्या है? बोनस शेयर मतलब फोकट का शेयर। फोकट का शेयर मतलब क्या होता है? ये जो फ्री रिजर्व होता है, कंपनी फ्री रिजर्व को कभी कभी कैपिटलाइज करके शेयर होल्डर्स को शेयर ऐसे फोकट में दे देता है, इसको बोलते हैं बोनस शेयर और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। नेक्स्ट, राइट इशू में कल बताया था, सेबी का गाइडेंस होता है राइट इशू में। राइट इशू का मतलब क्या है? राइट इशू जहां पर शेयर इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं राइट इशू। तो राइट इशू के बारे में भी सेबी का गाइडलाइंस है। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब लोन कैपिटल। जैसे ओन कैपिटल होता है इक्विटी, उसी तरह से लोन कैपिटल होता है डिबेंचर्स। और डेट, सेबी का जैसे इक्विटी का छोटा छोटा पार्ट होता है, हर एक पार्ट को शेयर बोलते हैं, उसी तरह से लोन कैपिटल का छोटा छोटा पार्ट होता है, हर एक छोटा छोटा पार्ट को, एक एक पार्ट को डिबेंचर बोलते हैं। तो शेयर इज ए पार्ट ऑफ ओन कैपिटल, डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। तो डिबेंचर भी कंपनी इशू करता है और लोन लेता है बहुत सारे लोगों से। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं डिबेंचर्स। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करता है उसका गाइडलाइंस भी सेबी करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ सेबी। सेबी का क्या क्या लिमिटेशन है? सेबी का एक ही लिमिटेशन है, सेबी इज ए सेपरेट बॉडी, इट्स ए इंडिपेंडेंट बॉडी फ्रॉम गवर्नमेंट, बट इट इज मोर और लेस इन द क्लच ऑफ द गवर्नमेंट्स। अभी इंडिपेंडेंस नाम का है, उतना इंडिपेंडेंस सेबी को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? अभी तक हम जो पढ़े थे, सेबी का बोर्ड में सारा का सारा मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट के क्लॉज में सेबी है, बट रेगुलेटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट शुड नॉट हैव एनी रिलेशन विद द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट बोल रहा है हाँ आपको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, सेबी को अभी तक उतना इंडिपेंडेंस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभी तक सेबी में बोर्ड में जितना मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इवन इफ सेबी का चेयरमैन का कोई फिक्स्ड टर्म अभी तक गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर पा रहा है। सेबी का चेयरमैन का कोई फिक्स टर्म नहीं है। सेबी का चेयरमैन अपॉइंट होता है कितने साल के लिए किसी को पता नहीं, वो रिटायरमेंट होने तक रहेगा। समझ में आ गया? तो सेबी का चेयरमैन को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो क्या कर सकता है, उसको सैक करके कोई नए आदमी को चेयरमैन बना सकता है। तो अभी तक सेबी को जो इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए इंडियन मार्केट में अभी तक नहीं मिला है। तो दिस इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ सेबी। नेक्स्ट स्लाइड। अभी रोल ऑफ सेबी, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी? अभी देखेंगे रोल ऑफ सेबी क्या है। रोल ऑफ सेबी इन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, रोल इश्यू ऑफ गाइडलाइंस, देन इन रोल ऑफ सेबी इन रिलेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, रोल ऑफ सेबी फॉर कोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ पब्लिक इशू, एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स, इसमें क्या रोल है। नेक्स्ट स्लाइड। Role of SEBI regarding takeover, role of SEBI regarding insider trading, role of SEBI regarding ethics for directors, role of SEBI for grievance handling, role of SEBI for mutual funds। ये सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ सेबी क्या क्या काम करता है। फर्स्ट, पहला सबसे बड़ा काम सेबी का है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे सुरक्षित रहे उसके बारे में प्रोटेक्शन करता है। इसीलिए सेबी बहुत सारा काम करता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। पहला काम करता है सेबी रेगुलेट करता है सारा का सारा स्टॉक एक्सचेंज को। समझ में आ रहा है? सेकेंड काम करता है सेबी क्या, सेबी रेगुलेट करता है डिफरेंट इंटरमीडियरीज को। अभी देखेंगे कौन कौन इंटरमीडियरीज है। मैं बताया था ब्रोकर्स आर इंटरमीडियरीज, सेबी इसको रेगुलेट करता है। ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को, बैंकर्स टू द इश्यूज को, ट्रस्टी को, रजिस्ट्रार टू द इश्यूज को, मर्चेंट बैंकर्स को, अंडरराइटर्स को, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, इन सबको रजिस्टर करते हैं, रेगुलेट करता है सेबी। नेक्स्ट,
सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेटेड डिपोजिटरीज में कल पढ़ाया था, जब स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होता है, डिपोजिटरीज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स और एनएसडीएल डीएसएल इन सबको भी, कस्टोडियन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन सबको भी रेगुलेट करता है सेबी। सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझाऊंगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है। बेटा आप जैसे मूवी देखने जाते हैं, मूवी का भी रेटिंग होता है, कैसे रेटिंग है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। इसी तरह से जब कोई सिक्योरिटीज, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया जाता है, उसका भी रेटिंग होता है। ये रेटिंग करते हैं कौन, कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं जो कंपनीज का फंडामेंटल्स, उसका पास्ट रिकॉर्ड, ये सब देखकर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन उस इश्यू के बारे में देंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसे इकरा है, क्रिसिल है, क्राइसिल, इकरा, इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं, ये शेयर कैसा है, ये बॉन्ड्स कैसा है। शेयर के बारे में उसको बोलते हैं आईपीओ ग्रेडिंग, और बॉन्ड्स के बारे में बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। वो देते हैं ये AAA रेटेड बॉन्ड है, AA है, AA+ है, जैसे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग। उसी तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं जो इश्यूज को रेट करते हैं। उन सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ सेबी। रोल ऑफ सेबी में प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, उसमें और क्या करता है सेबी, तो इंटरेस्ट कर वेंचर कैपिटल फंड्स को रेगुलेट करता है। वेंचर कैपिटल क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट इज ए कैपिटलिस्ट हु इन्वेस्ट इन हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स। हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में ये वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं, तो वेंचर कैपिटल फंड्स को भी सेबी रेगुलेट करता है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या म्यूचुअल फंड्स को भी इन्वेस्ट करता है, रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारा लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके उसको एक फंड मैनेजर के थ्रू में पैसा लगाते हैं मार्केट में, और वो जो पैसा से रिटर्न आता है बांट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या म्यूचुअल फंड्स। ये सारा म्यूचुअल फंड्स को भी सेबी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, सेबी प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट ट्रेड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी रेगुलेट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, मैं बाद में इसके ऊपर डिटेल में समझाऊंगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, उसको भी रेगुलेट करता है। सेबी रेगुलेट करता है ब्लॉक डील्स को। ब्लॉक डील्स मतलब एक साथ बड़ा अमाउंट का शेयर तुम खरीदोगे या एक साथ बड़ा अमाउंट का शेयर तुम बेचोगे, उसको बोलते हैं ब्लॉक डील्स। ये ब्लॉक डील्स को भी सेबी रेगुलेट करता है। सेबी प्रमोट करता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर्स को कैसे एजुकेशन किया जाए उसको प्रमोट करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। और क्या क्या करता है, सेबी इंस्पेक्शन करता है, ऑडिट करता है स्टॉक एक्सचेंजेस को। सेबी कोई कॉर्पोरेशन, कोई एजेंसी जो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वॉल्व है, उससे जो चाहे इंफॉर्मेशन, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कॉल करता है। सेबी क्या करता है, उन सबको, उनके सबके ऊपर फीस अदर चार्जेस लेवी करता है। सेबी मार्केट रिसर्च करता है, तो मार्केट के डाटा के ऊपर रिसर्च करके नया नया फाइंडिंग्स वो क्या करता है, इन्वेस्टर्स को देता है। तो मार्केट के वॉल्यूम के ऊपर रिसर्च करता है, मार्केट के प्राइस के ऊपर रिसर्च करता है, तो मार्केट रिलेटेड रिसर्च सेबी करता है। और ये सेबी, ये रिसर्च रिपोर्ट, मार्केट फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च रिपोर्ट सेबी फ्री में क्या करता है, इन्वेस्टर्स को अपने वेबसाइट में अपलोड करता रहता है, लोग पढ़कर उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सेबी का और एक रोल है, क्या है और एक रोल, इश्यू ऑफ गाइडलाइंस। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सेबी बहुत सारा गाइडलाइंस इशू करता है। किसके लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, मर्चेंट बैंकर्स के लिए गाइडलाइंस, अंडर राइटर्स के लिए गाइडलाइंस, लीड मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस। इसी तरह से बहुत सारा गाइडलाइंस सेबी इशू करता है। सेबी गाइडलाइन इशू करता है कैसे क्या माल प्रैक्टिसेस किसमें रोका जा सके, स्टॉक एक्सचेंजेस में जो इलीगल ट्रेडिंग या अनफेयर ट्रेडिंग, ये सबको कैसे रोका जा सके, उसके लिए गाइडलाइंस भी सेबी टाइम टू टाइम क्या करता है, इशू करता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट,
सेबी का और एक इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जितना स्टॉक एक्सचेंजेस होता है उन सारे स्टॉक एक्सचेंज का माई बाप कौन होता है? सेबी। सेबी के हिसाब से वो क्या करते हैं, सेबी उन सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। सेबी क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है ब्रोकर्स का, सब ब्रोकर्स का। सेबी सुपरवाइज करता है ब्रोकर्स को। सेबी ट्रेनिंग देता है इंटरमीडियरीज को। सेबी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को। सेबी मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, दो कंपनी मिलना, एक कंपनी को खरीदना, ये सब के लिए रूल्स रेगुलेशंस भी बनाता है कौन? सेबी। नेक्स्ट स्लाइड। सेबी फ्रॉडुलेंट ट्रेड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन स्टॉक एक्सचेंज को रोकता है। सेबी क्या करता है, गाइडलाइंस इशू करता है कैपिटल इशू के लिए। सेबी रिसर्च करता है, मैं बताया था मार्केट रिलेटेड रिसर्च करता है। सेबी इंस्पेक्शन करता है, इंक्वायरी करता है, ऑडिट करता है स्टॉक एक्सचेंज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। सेबी रेस्ट्रिक्ट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी। मैं बार बार इनसाइडर ट्रेडिंग बोल रहा हूं, उसका पॉइंट से जब पॉइंट आएगा मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। इशू ऑफ कोड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ पब्लिक इशू। जब पब्लिक इशू एक कंपनी लाता है तो एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है, और प्रोस्पेक्टस इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक इशू। ये प्रोस्पेक्टस में लोग गुड्डी बहुत अच्छा चीज लेते हैं, हमारा कंपनी ये है, वो है, 50 साल का है, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट कर देते हैं। तो फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढकर क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, वो प्रोस्पेक्टस में वो सेबी लिखकर उसके लिए गाइडलाइंस बनाया। समझ में आ रहा है क्या? वो गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी लोग प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि लोगों से पैसा तुम उठा रहे हो। क्या इशू करके? प्रोस्पेक्टस मतलब आप अपने कंपनी के बारे में बोल रहे हो, लेकिन सब कुछ जो अच्छा भी है वो बोलना चाहिए, जो रिस्क भी है वो सब बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में गाइडलाइंस कोड ऑफ कंडक्ट से भी बनाया हुआ है। समझ में आ गया? अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट करते हो, सेबी कैन टेक पेनल एक्शन रिगार्डिंग दैट कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग द स्मॉल इन्वेस्टर्स। प्रीवियस क्लास में पृथ्वी सर बता रहे थे स्मॉल इन्वेस्टर्स क्या है। सेबी का मेन फोकस है कैसे जो छोटा इन्वेस्टर से, रिटेल इन्वेस्टर से, वो कैसे अपना पैसा ठीक जगह पर लगा सके। इसीलिए सेबी क्या करता है, इंडिया भर में घूम घूम कर रिसर्च क्या करता है, कॉन्फ्रेंस, मेल्डा, एग्जीबिशंस और ये वर्कशॉप ये सब करता है, और लोगों को क्या करता है, फाइनेंशियली लिटरेट करता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे इन्वेस्ट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज देखना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डू नॉट्स इन स्टॉक एक्सचेंजेस से भी ये सबको क्या करता है, इन्वेस्टर्स को बताता है। स्पेशल फोकस होता है स्मॉल इन्वेस्टर्स, छोटा इन्वेस्टर्स अपना हाथ कैसे ना जलाए मार्केट में, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए सेबी क्या करता है, कॉन्फ्रेंस करता है, वर्कशॉप करता है। सेबी पिछले साल में 1000 इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस किया है, पिछले साल में 2200 वर्कशॉप किया है इंडिया में, 500 सिटी और टाउन में, छोटे छोटे टाउन में, स्कूल में, कॉलेजेस में जाकर वो लोगों को क्या बताते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, कैसे इंडिया में इक्विटी कल्चर, इन्वेस्टमेंट कल्चर डेवलप हो, उसके बारे में लोगों को बताता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कोड रिगार्डिंग टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब क्या है? टेक ओवर का मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेना, उसको बोलते हैं टेक ओवर। टेक ओवर के बारे में, मर्जर के बारे में, दो कंपनी मिलकर एक बन गया है, मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, अमालगमेशन, ये सब के बारे में रूल्स रेगुलेशंस भी सेबी बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। मतलब ये सबके टाइम में आपको क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, क्या क्या मैंडेटरी चीज बताना पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। ये सबके बारे में रूल रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट भी सेबी डिसाइड करता है। नेक्स्ट, हाँ, अभी मैं बताऊंगा प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स क्या करता है, कंपनी है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम कंपनी है। वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्या है, वो समंदर में जाकर क्या करते हैं, ऑयल ढूंढते हैं। समझ में आ गया, समंदर में बहुत बड़ा एरिया है, उसमें कहां पर ऑयल मिलेगा वो साल दर साल ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो 2 साल 3 साल में एक बार ऑयल मिल जाएगा। समझ में आ गया, वो बहुत जगह पर खुदाई करते हैं और एक जगह पर ऑयल मिला तो फिर ऑयल एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह से पेट्रोकेमिकल्स में ऑयल ढूंढने का काम चल रहा है। खुदा ना करे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को ऑयल मिल गया। अच्छा, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को ऑयल मिल गया, ये खबर पहले किसको पता चलेगा, जो खोद रहे हैं, फिर प्रोडक्शन मैनेजर्स को, उनका प्रोडक्शन, उनका टेक्निकल टीम को पता चलेगा, फिर वो धीरे धीरे अपना ऊपर वाले को बताएंगे, फिर जाकर मुकेश अंबानी या कंपनी के बोर्ड्स को पता चलेगा। अच्छा, इसमें एक दिन भी लग सकता है, मतलब आधा घंटा 8-10 घंटा भी लग सकता है। फिर अगर पता चलता है, ये खबर जब बाहर आएगा तो रिलायंस का प्राइस क्या हो जाएगा, ये खबर अच्छा खबर है तो रिलायंस का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन ये खबर बाहर आने से पहले, ये जितने पार्टीज को खबर पता चला पब्लिक होने से पहले, वो क्या करेंगे, शेयर को, रिलायंस का शेयर को मार्केट से खरीदना शुरू करेंगे। अगर मार्केट से खरीदेंगे तो अभी रिलायंस का प्राइस 2000 में, वो 2000 में सब शेयर खरीद लिए, फिर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमको ऑयल ही धीरे मार्केट में सब लोग रिलायंस खरीदने लगेंगे तो शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2000 का जो प्राइस था वो 3000, 2500, 3000 हो जाएगा। तो जब 3000 हो जाएगा ये बेच देंगे। 2000 में खरीदे थे, 3000 में बेच दिए। एक इंफॉर्मेशन से एक दिन में 1000 रुपये का फायदा, एक शेयर पर 1 लाख शेयर अगर खरीद लिए, 1 लाख इंटू 1000, समझ में आ गया। तो crores of rupees you can make with the help of inside information. What is inside information? जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लोगों को पता चले तो वो क्या हो जाएगा, आइदर शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा या शेयर का प्राइस गिर जाएगा। वो पता होने से पहले आप मार्केट में पोजीशन ले लें। यहां पर खरीद लिए थे, जैसे कल सर पृथ्वी सर बता रहे थे किसके बारे में, सत्यम के बारे में। रामलिंगम राजू एक दिन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे बैठकर बोला, हमारे कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उसमें बैलेंस शीट में जो आप देख रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट 8000 करोड़ का है, वो 8000 करोड़ नहीं, जीरो है। फिक्स्ड डिपॉजिट कुछ नहीं, आप लोगों को चूना लगा रहा था। समझ में आ रहा है। ये खबर जाते ही सत्यम का प्राइस धड़ाधड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सत्यम का प्राइस जो 1200 में था वो 20 रुपये तक आ गया। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले हमको पता चल रहा है सोर्स, वो उसका रिलेटिव्स और नियर एंड डियर पार्टी सत्यम का शेयर बेचकर मार्केट से निकल गए थे। समझ में आ गया। तो इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ। बात समझ में आ रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मार्केट में आने से पहले आप अगर वो इंफॉर्मेशन को पाते हैं और उस हिसाब से परचेज करते हैं या सेल करते हैं और उससे कुछ शॉर्ट टर्म फायदा लेकर चले जाते हैं और इलीगल पैसा बना लेते हैं, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ये सबके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए ऑन पब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहले आने से पहले आप अगर कुछ ट्रेडिंग करते हैं और पकड़ा जाते हैं, पूरा जेल का प्रावधान सेबी करके बैठा हुआ है इंडिया में। तो समझ में आ रहा है। सेबी का मेन फोकस है वी हैव टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग से फेयर प्ले मार्केट में नहीं हो सकता। बात क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड। सेबी कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स। मैं अभी समझा रहा हूं। डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आप पहले ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते थे, ये स्टॉक एक्सचेंज सब एसोसिएशन के फॉर्म में होते थे। एसोसिएशन फॉर्म अभी इंडिया में जितना स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारा स्टॉक एक्सचेंज का डीम्यूचुअलाइजेशन हो गया। व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन? मतलब ये सारा जो म्यूचुअल थे, एसोसिएशन थे, तोड़ दिया गया, उनको कंपनी बना दिया गया। तो ऑल द एक्सचेंजेस आर नाउ कंपनी। बीएसई लिमिटेड
BSE इज ए कंपनी, NSE लिमिटेड, NSE इज ए कंपनी। इसका मतलब अगर कंपनी बन गए, कंपनी को चलाएगा कौन? डायरेक्टर्स। समझ में आ गया? कंपनी का शेयर होल्डर्स अलग होंगे। BSE का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी मिलता है, मतलब BSE का शेयर BSE में ट्रेडिंग होता है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? NSE का शेयर NSE में ट्रेडिंग होता है, क्योंकि उससे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो एक कंपनी बन गया। अगर कंपनी बन गया, कंपनी को चलाएगा डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स लोग क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन से भी लगाया है। तुम स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर बनते हो तो तुम ये सब काम नहीं कर सकते हो, तुम ये खरीद नहीं सकते हो, इस तरह का। यू कैन नॉट डील इन सिक्योरिटीज इन प्रोप्राइटरी अकाउंट। अपने अकाउंट में इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स, president, vice president, treasurer of the stock exchange, they cannot deal with securities in proprietary account. They can go for in mutual fund investments, लेकिन proprietary accounts में वो क्या नहीं कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए रूल्स रेगुलेशन, वो किस किस शेयर में खरीदे हैं, किस किस शेयर का होल्डिंग है, वो सब डायरेक्टर सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्टॉक से आप अगर चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कोई भी डिसीजन जहां पर डायरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कौन सा डायरेक्टर? स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन कोड एथिक्स सबसे भी बनाकर रखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी से भी ये जो तीन आदमी हैं, कौन कौन सा तीन आदमी हैं? इशूअर्स, इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरीज, उन सबको खुला निमंत्रण दिया है। आपका अगर कोई ग्रीवेंस है, आप एक काम कीजिए, मेरे पास डायरेक्ट ले आकर आप अपना ग्रीवेंस को मेरे को बता सकते हैं। सेबी ये 13 या 14 तरह का फॉर्म ग्रीवेंस है, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह के करके ग्रीवेंस वो क्या कर सकते हैं, सेबी जा सकते हैं। टाइप 1 ग्रीवेंस है आपका रिफंड और अलॉटमेंट एडवाइस में, अगर कोई ग्रीवेंस है टाइप 1 में जा सकते हैं आप ग्रीवेंस लेकर, टाइप 1 ग्रीवेंस। टाइप 2 ग्रीवेंस क्या है? आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड का कंप्लेन, आप जा सकते हैं सीबी के पास। नॉन रिसिप्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर, टाइप 3। डिबेंचर रिलेटेड कुछ ग्रीवेंस है, टाइप 4। नॉन रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ ऑफर ऑफ राइट शेयर क्या कोई है, टाइप 5। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में कुछ अगर कंप्लेंट्स है, आप टाइप 6 ग्रीवेंस में सेबी को अप्रोच कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, फॉरेन वेंचर कैपिटल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, कस्टोडियन, इन सब का कोई ग्रीवेंस है, टाइप 7 ग्रीवेंस। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रोकर, सिक्योरिटी लेंडिंग इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार, इंटरमीडियरीज, अंडरराइटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इन सब का कुछ ग्रीवेंस है, आप टाइप 8। टाइप सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, क्लियरिंग हाउस, सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिटरी, इसका कुछ ग्रीवेंस है, टाइप 9। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आपका अगर कुछ ग्रीवेंस है, टाइप 10। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सब्सटेंशियल एक्विजिशन, कॉम्प्लायंस ऑफ लिस्टिंग कंडीशंस, इन सब के लिए कोई ग्रीवेंस अगर है, इन सब का, ये तीन पार्टीज का, वो कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सेबी। नेक्स्ट स्लाइड। टैकलिंग ऑफ false promise of assured return by bank sponsored mutual funds। बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स हैं, वो फॉल्स प्रोमिस देते हैं। आप मार्केट में कभी अश्योर्ड रिटर्न का प्रोमिस नहीं दे सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं बोल सकता है मेरे पास इन्वेस्ट करो मैं 20% रिटर्न दूंगा। मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन। मार्केट में मतलब आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं ना, मतलब बिजनेस कर रहे हैं ना, शेयर खरीद रहे हैं मतलब वो कंपनी में ओनर बन रहे हैं, वो कंपनी बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में कोई अश्योर्ड रिटर्न है क्या? आपका कभी लगेगा, मतलब देयर इज ऑलवेज ए रिस्क। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स का जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो वहां पर लिखा जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यहां पर रिस्क है, समझ में आ गया? आप अश्योर्ड रिटर्न करके लोगों को धोखा देकर पैसा नहीं ला सकते। यू कैन नॉट फ्लोट एनी पोंजी स्कीम। पोंजी स्कीम क्या है? पोंजी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा 1 मिनट स्टोरी बनाता हूं पोंजी स्कीम के बारे में। ये पोंजी स्कीम नाम शुरू हुआ, चार्ल्स पोंजी नाम का एक आदमी था।
वो बहुत सारा ये घोटाला वाला स्कीम लाया था, इसके नाम से पोंजी स्कीम हुआ है। उसका एक फेमस स्टोरी आप देख सुनेंगे और आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया में जाकर, मोंकी स्टोरी। ये मोंकी स्टोरी क्या है पोंजी स्कीम का? वो चार्ल्स पोंजी क्या किया, एक गांव में गया, वो एक असिस्टेंट को लेकर गया था। वो जाकर वो गांव में देखा बहुत सारा लोग, वो गांव में बहुत सारा बंदर था, समझ में आ गया। वो लोगों को बोला जो भी आदमी मेरे को बंदर लाकर देगा मैं उसको 200 रुपया दूंगा। तो सब लोग बंदर पकड़ने लगे और पोंजी के पास, चार्ल्स पोंजी के पास लेकर बंदर आए। तो बंदर को लेकर वो एक गोडाउन बनाया था, वहां पर सब बंदर रखता था, इनको 200 रुपया दिया। फिर धीरे धीरे गांव में बंदर कम होने लगे। तो फिर चार्ल्स पोंजी बोला अभी बंदर कम है, आपको बहुत कोशिश करना पड़ता है, जो भी आदमी अभी मेरे को बंदर लाकर देगा मैं उसको 500 रुपया दूंगा। तो 500 रुपया तो लोग क्या किए, फिर ढूंढे जितना बंदर हो सके आसपास के गांव से बंदर भी लाकर इसको देने लगे। वो 500 रुपया दिया। फिर बंदर बहुत कम हो गए, समझ में आ गया। फिर चार्ल्स पोंजी बोला नेक्स्ट मैं अभी गांव शहर जा रहा हूं, शहर में आने के बाद जो भी आदमी मेरे को बंदर लेकर देगा मैं उसको 3000 एक बंदर का दूंगा। समझ में आ गया, 3000। तो लोग तो ढूंढने लगे, लेकिन गांव में, पास के गांव में बंदर ही नहीं है। लेकिन चार्ल्स पोंजी का एक असिस्टेंट था, वो क्या बोला, लोगों के पास गया, बोला ये तो गया है चार्ल्स पोंजी शहर, आप एक काम करो उसके गोडाउन में से बहुत बंदर है, वो गोडाउन का चाबी खोलकर मैं आपको 4-5 बंदर बेच दूंगा, आप मेरे को 2000 और ये पंजी आएगा 3000 में उसको बेच देना बंदर। लोग सोचे अच्छा स्कीम है, 2000 में बंदर मिल रहा है, 2000 में लूंगा और पंजी आएगा 7 दिन के बाद, उसको 3000 में बेच देंगे। तो सब लोग उसके असिस्टेंट से 2-2000 देकर बंदर पूरा लेने के बाद पैसा दे दिए उसके असिस्टेंट को। फिर इंतजार करने लगे, सोमवार गया, मंगलवार गया, बुधवार गया, गुरुवार गया, 7 दिन गया, 10 दिन गया, 15 दिन गया, ना उसका असिस्टेंट का दिखाई है ना चार्ल्स पोंजी का दिखाई। समझ में आ गया। उन्हीं का बंदर 200 में खरीदा, उन्हीं से 500 में खरीदा, उनको 2000 में चिपका कर पैसा लेकर भागे। इसको बोलते हैं पोंजी स्कीम। ये जो चार्ल्स पोंजी था बहुत सारा इस तरह का स्कीम लाकर लोगों से पैसा ठग कर लिया था। समझ में आ रहा है। इसी के नाम से आज के डेट में तुम जो जितना चिट फंड स्कीम देखते हो उसका नाम पड़ा हुआ है पोंजी स्कीम, उसको बोलते हैं पोंजी स्कीम, चार्ल्स पोंजी के हिसाब से हुआ है। तो सेबी देखता है स्टॉक मार्केट में ऐसे अश्योर्ड रिटर्न बोलकर कोई म्यूचुअल फंड वाला आपसे पैसा ना ले। समझ में आ गया। पैसा आपसे लेगा तो आपको बताना पड़ेगा मैं पैसा लेकर कहां पर इन्वेस्ट करने वाला हूं, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिटर्न है, ये सारे को हमको बोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सेबी टेक्स स्टेप्स टू चेक फॉल्स प्रॉमिस made by mutual fund companies. Okay, next slide. With this we complete SEBI. Now we will go to stock exchanges. Next, stock exchange के बारे में पढ़ेंगे। मैं बताया था स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज इज ए सेकेंडरी मार्केट। तो 2 तरह का मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट होता है जहां पर कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में कंपनी सिक्योरिटीज या शेयर इश्यू करता है, उसके बदले में पैसा लेता है इन्वेस्टर से। सो दिस इज प्राइमरी मार्केट। एक बार हो गया उसका लिस्टिंग होता है एक्सचेंज में और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज में, उस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सो स्टॉक एक्सचेंज इज एक्सचेंज फॉर stocks, shares and securities which are already issued in primary market are bought and sold. जो प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इशू हो चुके हैं ये सेकेंडरी मार्केट में उसका रीसेल होता है। तो लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर द इंपोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, लास्ट में बात करेंगे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड।
सो व्हाट इज ए स्टॉक एक्सचेंज? मैं बता दिया हूं, स्टॉक एक्सचेंज इज ए फोरम वेयर स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड। पहले स्टॉक एक्सचेंज एक फिजिकल मार्केट होता था जहां पर लोग जाते थे, खरीदते थे, बेचते थे सिक्योरिटीज का। आज के डेट में ये कोई जगह नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक वर्चुअल मार्केट है। यहाँ पर इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग होता है। कोई मतलब वहां पर नहीं है। तुम बोलोगे सर बीएससी का ऑफिस तो दलाल स्ट्रीट में है, अरे वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर सर्वर बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो इट्स ए वर्चुअल मार्केट नाउ, इट्स ए मार्केट मैकेनिज्म through which order placing, buying order and selling orders are placed and orders are matched. समझ में आ रहा है? So stock exchange is a virtual market. Stock exchange may be owned by a institute or may be owned by government. बहुत सारा कंट्री में गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज को ओन किया है, इंडिया में गवर्नमेंट ओन नहीं करता है। ये इटसेल्फ एक कंपनी है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब बीएससी का ओनर कौन है? जो बीएससी का शेयर होल्डर्स है। समझ में आया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ओनर कौन है? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर होल्डर्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ओनर कौन है? जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर होल्डर्स है। क्योंकि अभी ये सब कंपनी बन गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? नाउ जिसको मैं बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। लेकिन इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस आर कॉर्पोरेट एंटिटीज, दे आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, जो भी कंपनी का शेयर और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगा, वो कंपनी को पहले लिस्ट करना पड़ेगा। उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा तो जाकर ट्रेडिंग होगा। समझ में आ गया? बिना लिस्टिंग का ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। तो ऑल कंपनीज आर नॉट लिस्टेड कंपनीज, ओनली पब्लिक कंपनीज कैन बी लिस्टेड कंपनीज इफ दे फुलफिल द लिस्टिंग कंडीशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। एक लिस्टिंग एग्रीमेंट बनता है। समझ में आ गया? लिस्टिंग एग्रीमेंट का जितना कंडीशन है, रूल्स है, रेगुलेशन है, सबको आप अगर मानेंगे तो आपका शेयर लिस्टेड हो सकता है। आप अगर नहीं मानेंगे, स्टॉक एक्सचेंज हैज पावर टू डीलिस्ट योर शेयर्स। कभी कभी कंपनी भी खुद जाकर एक्सचेंज को रिक्वेस्ट करता है, हम अब नहीं कर सकते हैं, हमारा शेयर को आप क्या कर लीजिए, डीलिस्टिंग कर लीजिए। समझ में आ गया? तो डी लिस्टिंग भी होता है। तो बिना लिस्टिंग का आपका कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। मैं बताया था आज के डेट में सारा का सारा ट्रेडिंग ऑनलाइन होता है, लेकिन दुनिया में बहुत सारा ऐसा मार्केट है जहां पर छोटा मोटा कंट्री है जहां पर अभी भी ऑफलाइन ट्रेडिंग होता है। सो स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन ट्रेडिंग हो सकता है। इंडिया का मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट्स। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज? मैं बताया था स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या मिलता है? स्टॉक्स मिलता है, शेयर्स मिलता है, बॉन्ड्स मिलता है, डिबेंचर्स मिलता है। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड इन दिस मार्केट which the duration is more than 1 year। में 1 साल से ज्यादा वाला मार्केट है। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, रेगुलेट ट्रेड इन सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है। स्टॉक एक्सचेंज डील्स विथ ओनली रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज। मैं बताया था ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज में आप जो काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यू कैन गो थ्रू ओनली ब्रोकर्स। इसका मतलब आपको खरीदना है, आप ब्रोकर के थ्रू में जाएंगे। नेक्स्ट, ऑल स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सारा स्टॉक एक्सचेंज किसमें रिकॉग्नाइज होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर आप एक सा स्टॉक एक्सचेंज में परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, उसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। मैं अभी समझाया था। बिना ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब वो एक्सचेंज कुछ नहीं है, वो गवर्नमेंट उसको क्या नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आपका ब्रोकर आपको बोलता है आप मैं उससे करवा दूंगा, उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, या इसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है क्या? अभी ऑल सिक्योरिटी डीलिंग्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज जितना सिक्योरिटी उसमें ट्रेडिंग होगा उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या फंक्शंस है? इट्स ए बैरोमीटर, इकोनॉमिक बैरोमीटर। इट शोज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। ये बताता है, इट्स द मिरर ऑफ द इकोनॉमी।
इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है, आप इंडियन मार्केट्स को देखेंगे पता चल जाएगा। आप देखेंगे अभी कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड का सारा मार्केट क्रैश कर चुका है। क्यों क्रैश कर चुका है? क्योंकि फंडामेंटल्स आर नॉट गुड। इकोनॉमिक पैरामीटर्स, कंपनी का इकोनॉमिक पैरामीटर से कंट्री का इकोनॉमिक पैरामीटर्स पता चलता है उस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या हालत है। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें सिक्योरिटीज का प्राइस निकलता है। प्राइस कैसे निकलता है? मैं बताया था फिश मार्केट में एक फिश का प्राइस कैसे निकलता है, डिमांड एंड सप्लाई। लोग खरीदने वाले हो जाएंगे, अभी बहुत लोग टीसीएस को खरीदना चाहेंगे, टीसीएस का प्राइस बढ़ेगा। अभी बहुत लोग टीसीएस विप्रो को बेचना चाहेंगे, विप्रो का प्राइस गिरेगा। इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर मैचिंग। समझ में आ रहा है क्या? देन सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेफ ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन रूल्स रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस में होता है। देन इट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं बताया था स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंडरी मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू प्राइमरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज अच्छा चलेगा, प्राइमरी मार्केट अच्छा चलेगा, क्योंकि लोगों को पता है मैं अगर इस कंपनी का शेयर खरीदूंगा और ये एक लिस्टेड कंपनी है, मैं जब चाहे ये शेयर को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको मैं किस में बेच दूंगा, एक्सचेंज में जाकर बेचकर पैसा कमा सकता हूं। तो प्राइमरी मार्केट is developed on the ground of development of a good secondary market। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है? लोग पैसा डालते हैं कंपनीज में। कंपनीज का मतलब क्या है? बिजनेस में। जब बिजनेस में लोग पैसा डालते हैं तो उनका सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोडक्टिव यूज होता है, बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो स्टॉक एक्सचेंज इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड। लिक्विडिटी में समझाया था अभी, स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोमोट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? लोगों को सेविंग करने के लिए उकसाता है। आप सेविंग करते हैं, सेविंग को चैनलाइज करते हैं किसमें? इन्वेस्टमेंट में। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द मेजर एक्सचेंजेस इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा एक्सचेंज है, कौन कौन सा बड़ा बड़ा एक्सचेंज है। अभी देखो, स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इन एशिया। एशिया का ओल्डेस्ट मार्केट एक है इंडिया, एक ओल्डेस्ट मार्केट है इंडिया। मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है कौन कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, और एक स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, और एक नया स्टॉक एक्सचेंज अभी बना है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स, एक स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा बहुत सारा रीजनल एक्सचेंजेस था का मतलब क्या है? अभी भी है, लेकिन वो मरे हुए हैं, आईसीयू में। क्यों है? अभी भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज है। अरे पहले जब ओपन आउटक्राई मेथड में ट्रेडिंग होता था, मतलब आपको अगर शेयर खरीदना है एक्सचेंज जाना पड़ता था, तब ये रीजनल एक्सचेंजेस फ्लोरिश होते थे। आज के डेट में जब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ गया, इसका मतलब आप यहां बैठकर, मैं पुरी में बैठकर, मैं भुवनेश्वर में बैठकर बीएसई में शेयर खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं। तो बीएसई मार्केट में आ जाकर मैं भुवनेश्वर एक्सचेंज क्यों जाऊं? तो सारा का सारा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज आइदर बंद हो चुके हैं आधा, और आधा मरने के कगार पर है। समझ में आ रहा है? ये भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज में आप जाएंगे, अभी देखेंगे वहां पर जो बड़ा बड़ा पीट बना था, ओपन आउटक्राई सिस्टम कर लिए, अभी वो बड़ा बड़ा पीट में कुछ काम नहीं हो रहा है। आधा पोर्शन वो बैंक लोगों को भाड़ा दिए हुए हैं। इस तरह से वो एक्सचेंजेस चलता है। समझ में आ रहा है? वर्चुअली वहां पर ट्रेडिंग बहुत कम हो रहा है, या कुछ एक्सचेंजेस में नहीं भी हो रहा है। अभी वो सोच रहे हैं वो सारा एक्सचेंजेस को धीरे धीरे क्या कर ले? बंद कर ले। कुछ एक्सचेंजेस सुप्रीम कोर्ट गए थे, नहीं हम बंद नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से सेबी सोचता है ये छोटा मोटा रीजनल एक्सचेंजेस को हम क्या कर ले? बंद कर दे। तो इंडिया में अब स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे तो तीन बड़ा बड़ा एक्सचेंज है। एक है बीएसई, एक है एनएसई, एक है इंडिया आईएनएक्स।
तो फर्स्ट हम बात करेंगे बीएससी। नेक्स्ट स्लाइड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमको पता है इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 1800 समथिंग में बना था, मैं पढ़ूंगा अभी। तो इसका मतलब इट्स ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सिचुएटेड है, दलाल स्ट्रीट में है। आज के डेट में कहां पर सिचुएटेड है मायने नहीं करता है। आज के डेट में स्टॉक एक्सचेंज बोले तो कोई जगह का मायने नहीं है, वो जो सॉफ्टवेयर लगाए हैं, वो जो सर्वर लगाए हैं, उसका कैपेसिटी के ऊपर एक्सचेंज का कैपेसिटी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो अभी फास्ट देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी। इट्स द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1875। समझ में आ रहा है? इट्स द पायोनियर फर्स्ट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 1875 में हुआ था। ये स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 6000 कंपनी लिस्टेड हुए हैं, उसमें से कुछ डी लिस्टेड भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी 4-5 हजार के आसपास कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुए हैं। उनका शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? दलाल स्टेट में। अभी एक बात करेंगे, जब भी हम एक चीज आता है सेंसेक्स, सेंसेक्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मैं बताया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी 5000 कंपनी का शेयर लिस्टेड है, लेकिन 5000 कंपनी में ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है इसको देखने के लिए कुछ इंडाइसेस या इंडेक्स बनाए। जैसे आपके घर में जब आप चावल पकाते हैं, पूरा चावल पका है या नहीं देखने के लिए हम क्या पूरा देखते हैं क्या? ऐसे मतलब ये जो स्पून डालकर कुछ चावल ले आते हैं, उनको देखते हैं वो ठीक है या नहीं, उससे हम मार्केट के बारे में, पूरा चावल के बारे में पता करते हैं। उसी तरह से मार्केट में बीएससी में 5000 एक्सचेंज है, उसमें से हम 30 कंपनी को लेकर क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्टर का जो मेन प्लेयर्स हैं 30 कंपनी को लेकर एक इंडेक्स बनाए। वो 30 कंपनी का वैल्यू 1979 में 100 था। अभी वही 30 कंपनी का वैल्यू कितना हुआ है? अभी कितना हुआ है? अभी 32,000 हुआ है। मतलब वो जो कंपनी का वैल्यू 100 थे 30 कंपनी 79 में, अभी वो कितना गुना बढ़े हैं? 100 वाला 32,000 हो गया। इसका मतलब 320 गुना बढ़ गया। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं क्या? इंडेक्स। तो इंडेक्स इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट। इट्स ए इंडेक्स मतलब इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट। ये दिखाता है मार्केट में क्या चलता है। इंडेक्स बहुत तरह का है। बीएससी में बीएससी 50 है, बीएससी 100 है, बीएससी बैंकेक्स है, बीएससी 500 है, ये सारा इंडेक्स है। बट मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स इन केस ऑफ बीएससी इज सेंसेक्स। ओके, सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये 30 कंपनी का क्या बताता है? ऑन एन एवरेज ये 30 कंपनी में कितना चेंज हुआ है, ये सेंसेक्स बताता है। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलता है मैं बताया था। ये कंपनी बन गए हैं, कंपनी बन गए तो उसको कौन चलाएगा? डायरेक्टर्स चलाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उसका चेयरमैन होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलता है। अभी मैं बताया था स्टॉक एक्सचेंज का मेजर चीज कहां पर है नहीं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर लगाया है, वो सॉफ्टवेयर मायने करता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर लगा है जिससे ऑर्डर मैचिंग होता है, वो सॉफ्टवेयर का नाम है बोल्ट, बॉम्बे बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। बोल्ट सिस्टम ये 1995 में लगा था। ये बोल्ट सिस्टम के बेसिस पर ट्रेडिंग होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी। अभी बीएससी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी 1992 में मैं बताऊंगा काम 1992 में नया 95 में ऐसा कुछ में बना था, मैं हम बात करेंगे। ये नया स्टॉक एक्सचेंज है। अगर ये नया स्टॉक एक्सचेंज है, नया सॉफ्टवेयर लगाया है, समझ में आ गया? इसका सॉफ्टवेयर ज्यादा पावरफुल है बोल्ट सिस्टम से। तो अभी ये क्या किया, जब कंपटीशन हुआ, जो नया चीज है लोग वहां पर गए। इंडिया में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग एनएससी में शुरू हुआ था। तो बहुत सारा इन्वेस्टर्स बीएससी छोड़कर एनएससी चले गए थे। आज के डेट में इंडिया में अगर 100 रुपये का ट्रेडिंग होता है, 70 to 80% ट्रेडिंग एनएससी में होता है।
समझ में आ रहा है क्या? एनएससी में वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बीएससी में। बीएससी में 20 से 30% ट्रेडिंग होने से एनएससी में 70 to 80% ऑफ टोटल ट्रेडिंग ऑफ इंडिया इज डन इन एनएससी। एनएससी इज द अल्ट्रा मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज इन कंपैरिजन टू बीएससी। तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। NSE is the youngest stock exchange. It was established in the year 1992. It is the leading stock exchange of India. समझ में आ रहा है क्या? NSE was established in 1992. यहां पर फर्स्ट टाइम डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, डीमेटेरियलाइज्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था। कहां पर? NSE। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एनएससी इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल। एनएससी भी एक कंपनी है आज के डेट में। इट इज ओन्ड बाय इट्स ओन शेयर होल्डर्स। यहाँ का इसमें भी डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो चलाते हैं। जैसे बीएससी का एक पॉपुलर इंडेक्स था, बीएससी में बहुत सारे इंडेक्स थे, एक पॉपुलर इंडेक्स था सेंसेक्स। एनएससी का एक पॉपुलर इंडेक्स है, एनएससी में बहुत सारे इंडेक्स है, एक पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी। बीएससी में लगभग 5000 कंपनी लिस्टेड थे, एनएससी में 1600 कंपनी लिस्टेड है। आप बोलेंगे सर एनएससी में इतना कम है, क्यों है? क्योंकि एनएससी का लिस्टिंग रिक्वायरमेंट मोर स्ट्रिंजेंट है बीएससी के चलते। बीएससी में बहुत सारा छोटा मोटा कंपनी भी लिस्टेड है, एनएससी में सिर्फ बड़ा कंपनी ही लिस्टेड है, क्योंकि इसका लिस्टिंग कंडीशंस आर मोर स्ट्रिंजेंट देन एनएससी देन बीएससी। तो एनएससी के बहुत सारा इंडेक्स है, एनएससी का एक पॉपुलर इंडेक्स है, जिस पॉपुलर इंडेक्स का नाम है निफ्टी। निफ्टी क्या करता है? बीएससी सेंसेक्स दिखाता है 30 कंपनी का, निफ्टी दिखाता है 50 कंपनी। समझ में आ गया? 50 कंपनीज का वैल्यू कितना है इन टर्म ऑफ देयर बेस ईयर वैल्यू। अच्छा, बीएससी एक सॉफ्टवेयर से चलता था, मैं बताया था, वो सॉफ्टवेयर का नाम था बोल्ट सिस्टम। एनएससी जो सॉफ्टवेयर में चलता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है नीट सिस्टम। व्हाट इज नीट? नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो एनएससी नीट सिस्टम में ट्रेडिंग होता है। एनएससी में नीट इज मच मोर पावरफुल देन बोल्ट। तो इसीलिए नीट सिस्टम में आज के डेट में ज्यादा ट्रेडिंग कहां पर हो रहा है? एनएससी में हो रहा है इन कंपैरिजन टू बीएससी। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इज इंडिया आईएनएक्स। अच्छा, अभी मैं बताया एनएससी और बीएससी में जब फाइटिंग हुआ, कौन जीत रहा है? अभी एनएससी जीत रहा है, तो बीएससी पिछड़ रहा था। बीएससी बोला अच्छा ठीक है, अभी मैं तेरे से फाइटिंग ये बोल्ड सिस्टम में नहीं कर सकता हूं, मैं अपना और एक स्टॉक एक्सचेंज बनाऊंगा। बीएससी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाया जिसका नाम इंडिया आईएनएक्स। ये एक नया स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंज को ये बनाया है, कंपटीशन करेगा किसके साथ? एनएससी के साथ। तो इंडिया आईएनएक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सो इंडिया आईएनएक्स नया स्टॉक एक्सचेंज है। इट्स द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बन रहा है आईएफएससी में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी जिसका नाम बनते हैं, वो गिफ्ट सिटी में इसका ऑफिस है। किसका? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स का। ये एक सब्सिडियरी में अभी बनाया था, ये एक सब्सिडियरी कंपनी है किसका? बीएससी का। समझ में आ रहा है? इसको इनागुरेट 2017 में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किए थे। अभी 2 साल 3 साल हुआ है इसमें ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। मैं बताया था जो स्टॉक एक्सचेंज का कैपेसिटी कैसे पता चलता है, उसका कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑर्डर मैचिंग होता है। ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर लाया है जिसका नाम है यूरेक्स T7। इंडिया आईएनएक्स में लगा है यूरेक्स T7। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑर्डर मैचिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ऑर्डर मैचिंग मतलब डिमांड और सप्लाई को मैच कर प्राइस निकलता है। ये मैचिंग करता है 4 माइक्रो सेकेंड में। एक एक ऑर्डर का मैचिंग करने के लिए टाइम लेता है 4 माइक्रो सेकेंड। मैं आपको बताना चाहता हूं माइक्रो सेकेंड क्या है। माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 लाख। क्या है? 10 मिलियन। 1 डिवाइड बाई 10 लाख क्या है? सेकेंड। इतना टाइम। सेकेंड का 1 डिवाइडेड बाई 10 लाख। 10 लाख
पोजीशन में उसको 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइक्रो सेकेंड में एक एक ऑर्डर का मैचिंग होता है। सो इट्स ए बेटर स्टॉक एक्सचेंज। द एक्सचेंज प्रोवाइड फर्स्ट ऑफ इट काइंड्स सिंगल सेगमेंट अप्रोच। इसमें सब चीज एक साथ मिलता है। इक्विटी का ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी का ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी का ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारा का सारा ट्रेडिंग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में इंडिया आईएनएक्स में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये स्टॉक एक्सचेंज का एक वर्किंग आवर होता है, लेकिन ये इंडिया आईएनएक्स इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए, एफआईएच के लिए ज्यादातर फोकस करता है, इसीलिए ये एक्सचेंज कभी बंद नहीं होगा। इसी के चलते ये एक्सचेंज का वर्किंग आवर 22 आवर से दे दिया गया है। मतलब ये हर वक्त खुलता है, 2 घंटा सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है, तो बाकी सब टाइम में अब दिन हो रात हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जब दिन होता है, बाहर के कंट्री में रात हो सकता है। उसका इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या रात को बैठकर ट्रेडिंग करेगा? इसीलिए वो लोग प्रिफर करेंगे कहां पर ट्रेडिंग करने के लिए? इंडिया आईएनएक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। बात समझ में आ गया? क्योंकि 24 घंटा उनका जब दिन होगा तो यहाँ पर रात हो सकता है, लेकिन हमारा एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स खुला होगा। समझ में आ गया? तो इंडिया आईएनएक्स कनेक्ट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू इंडियन मार्केट्स। हमें क्लियर? सो इंडिया आईएनएक्स में बहुत सारा नया नया इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस ट्रेडिंग होगा। समझ में आ रहा है? सो द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज इंडिया आईएनएक्स, नया स्टॉक एक्सचेंज। इसका परफॉर्मेंस कैसे होता है? बीएसई पुराना एक्सचेंज था और उससे थोड़ा मॉडर्न एक्सचेंज आया एनएससी। अभी एक और अल्ट्रा मॉडर्न एक्सचेंज आ रहा है जिसका नाम है इंडिया आईएनएक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टॉक एक्सचेंज खत्म कर दिए। अभी मैं पढ़ाऊंगा एक छोटा चैप्टर है, राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। समझ में आ गया? एक कंपनी का मालिक कौन होता है? मैं बहुत बार बता चुका हूं, कंपनी का मालिक है शेयर होल्डर्स। लेकिन शेयर होल्डर्स लोग अपने आप को मालिक मानना छोड़ दिए थे। वो भूल गए थे उनका क्या क्या राइट्स है, वो भूल गए थे वही ओनर हैं। ये डायरेक्टर्स लोग सिर्फ उनका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे ये कंट्री इंडिया हमारा है, 120 करोड़ लोगों का है। हम भूल गए थे ये कंट्री हमारा है। हम सोचे थे ये जो 545 लोग बैठे हुए हैं, लोकसभा राज्यसभा नेता वगैरह, वो ही गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट हम है कंपनीज, हम है शेयर होल्डर्स। ये हम है शेयर होल्डर्स को बोलते हैं शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन कल्चर, शेयर होल्डर्स एक्टिविटी। लोग देते हैं उनका क्या क्या है, वो सब राइट्स को अभी शेयर होल्डर्स लोगों को जानना चाहिए, तो ही वो क्या कर सकते हैं, वो अपना राइट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में शेयर होल्डर एक्टिविज्म इंडिया में बढ़े। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या राइट्स है शेयर होल्डर्स का। फर्स्ट राइट, appointment of directors, legal action against director, appointment of auditor, voting right, right to call general meeting, right to inspect register and books, right to copies financial statements, right to sue for wrongful acts and other shareholders right। एक एक करके एक एक मिनट में 5-10 मिनट में खत्म करते हैं। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। मैं समझाया था कंपनी का शेयर होल्डर्स के पास राइट से वो कंपनी का डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ता है। कुछ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन उन सारा अपॉइंटमेंट को, जैसे एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल डायरेक्टर, इन सारा अपॉइंटमेंट्स को रैटिफाई करने का राइट्स, रैटिफाई मतलब उनको रखना या ना रखना करने का राइट्स किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास है। नेक्स्ट स्लाइड। लीगल एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। मैं बताया था डायरेक्टर्स लोग मालिक नहीं है, मालिक है शेयर होल्डर्स लोग। डायरेक्टर्स कुछ गड़बड़ी किए, उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन शेयर होल्डर्स ले सकते हैं। तो कब लेंगे लीगल एक्शन? व्हेन दे एक्ट in a fraudulent manner, when they misappropriate the funds of the company, when they divert the funds of the company, when they act in a malified manner, the shareholders has a right to take legal action against the directors. Next slide.
अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर्स को भी शेयर होल्डर्स लोग अपॉइंट करते हैं। समझ में आ रहा है? फास्ट ऑडिटर जो कंपनी का होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा जितना सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होते हैं सबको एजीएम में शेयर होल्डर्स लोग अपॉइंट करते हैं। एक बार ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। समझ में आ रहा है क्या? आज के डेट में जैसे डायरेक्टर का रोटेशन होता है उसी तरह से रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। वोटिंग राइट मैं बताया था शेयर होल्डर के पास, जैसे हम लोगों के सिटीजन्स के पास एक राइट होता है वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स के पास एक राइट है, सबसे बड़ा राइट वोटिंग राइट। शेयर होल्डर्स हैज ए राइट to attend and vote in the meeting. Vote can be done में बताया था, बहुत सारा वे था, show of hands, then by poll, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई वोटिंग के बारे में बताया था, पोस्टल बैलेट में वोट हो सकता है, वो उनके पास राइट है। आप अगर नहीं जा सके प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रॉक्सी इज अलाउड इन सर्टेन केसेस। तो ये वोटिंग राइट भी शेयर होल्डर्स के पास है। नेक्स्ट स्लाइड, राइट टू कॉल जनरल मीटिंग। अगर डायरेक्टर्स लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के पास राइट है वो जनरल मीटिंग बुलाएगा। कौन सा जनरल मीटिंग? ईजीएम। मैं बताया था ईजीएम कैसे बुला सकता है, अगर आपके पास 1/10 वोटिंग राइट है या आपके पास 1/10 शेयर कैपिटल है, आप रिक्विजिशन देकर ईजीएम बुला सकते हैं। अगर ईजीएम ऐसा नहीं है, 1/10 भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप एनसीएलटी के पास जाकर बोलेंगे ये सब गड़बड़ी हो रहा है, एनसीएलटी देखेगा, इंक्वायरी करेगा, फिर ऑर्डर दे सकता है। क्या कर सकते हैं? ईजीएम बुलाओ। ईजीएम बुलाकर हम बात पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्टर्स को लाइबल बनाएंगे फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। नेक्स्ट स्लाइड, राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर एंड बुक्स। अरे कंपनी हमारा है, ये कंपनी का बुक्स रजिस्टर्स देखने का राइट्स किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास है। वो जब चाहे तब जाकर कंपनी में इंस्पेक्ट कर सकता है, रजिस्टर्स देख सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, राइट टू गेट कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉपी पाने का राइट्स हर किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास है। हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से पढ़ना पड़ेगा, उससे जो लूप होल्स है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा, हम डायरेक्टर्स को पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, राइट टू स्यू फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स। अगर डायरेक्टर्स लोग कुछ काम गड़बड़ी कर रहे हैं हम स्यू कर सकते हैं। किसके साथ? डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर रिलायंस कंपनी का मैं एक छोटा शेयर होल्डर हूं, रिलायंस का डायरेक्टर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, मैं उसके साथ क्या सुप्रीम कोर्ट में फाइट करूंगा? समझ में आ रहा है? पहले एक इंडिविजुअल फाइट होता था। आज के डेट में कंपनी एक्ट 2013 आपको एक पावर दिया है जिसका नाम है क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट मतलब आप अकेले हैं लेकिन 50, 100, 200 आदमी मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप करके वो डायरेक्टर के अगेंस्ट में केस करेंगे। दैट इज नोन एज क्लास एक्शन सूट। पहले अलाउ नहीं था, 2013 के कंपनी एक्ट में आया है, क्लास एक्शन सूट अप्लाइड है। इसका मतलब आप ग्रुप बनाकर डायरेक्टर के अगेंस्ट में कुछ रॉन्गफुल एक्ट्स किए हैं उसको क्या कर सकते हैं? उसको स्यू कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। कंपनी आपका है, कंपनी में कोई फंडामेंटल चेंज होगा, कोई मर्जर होगा, एक्विजिशन होगा, कंपनी बंद होगा, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलना चाहिए। तो दीज आर द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट स्लाइड, next slide. Other shareholders right we have already discussed, these are the rights. Next slide, हाँ, ड्यूटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स। मैं बता रहा था कंपनीज का शेयर होल्डर्स का भी कुछ ड्यूटीज है, जैसे राइट्स है वैसे ड्यूटीज है। पहला एक छोटा सा काम हम अगर कर लेंगे तो ये डायरेक्टर्स लोग जो डायरेक्टर होकर बैठे हुए हैं वो घूमेंगे, जैसे प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बन गए हैं, उसी तरह से हम लोग अगर जनरल मीटिंग कंपनी का जब होता है अगर सिर्फ अटेंड करेंगे और वहां पर वाइजली वोटिंग करेंगे तो ये शेयर होल्डर्स लोग, ये जो डायरेक्टर्स लोग हैं वो क्या करेंगे? अपना मनमानी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? एजेंसी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिलायंस कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, वहां पर जाते हैं, रिलायंस कंपनी का जनरल मीटिंग है, हम जाते हैं, मैं भी शेयर होल्डर हूं, मैं भी गया हूं, पहले ढूंढता हूं ये फूड कूपन कहां पर है। समझ में आ गया? अरे बेटा कंपनी तेरा है, कंपनी का जो पैसा है फूड कूपन दिया है वो तेरे ही पैसे में दिया है। समझ में आ रहा है? पहले जनरल मीटिंग में बैठो, क्या बात हो रहा है क्वेश्चन पढ़ो, अफेयर्स के बारे में देखो, डायरेक्टर्स को क्वेश्चन पूछो। अगर इस तरह का लोग अपना ड्यूटी करने लगे, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हूं उस कंपनी में मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो जाकर वो कंपनी डेवलप होगा, प्रॉस्पर होगा। मेरे कंपनी में कौन कौन है मेरे को पता होना चाहिए, मेरा और शेयर होल्डर्स, अदर शेयर होल्डर्स कौन कौन है, उनके साथ रेगुलरली बातचीत करूंगा। सो यू हैव टू इन्वेस्ट, you have to involve. This is the most important duty of the shareholders. अगर आप ऐसा कर सकें तो आप इंडिया में वर्ल्ड क्लास कंपनीज बना सकते हैं। This is my presentation. Okay, next slide. So at last, I want to thank Professor Dr. Srikant Mahapatra sir, the Vice Chancellor of Odisha State Open University. With folded hand, I want to thank him. I want to need his blessings. Okay, next, at last, next slide. I want to thank two eminent professors of OSOU who has helped me for presenting my lecture series. First one is Prithviraj Mishra sir. Second one is Hero Chandra Maharana sir for giving me an opportunity to speak on this platform. Next slide. Next slide. हाँ, मैं जैसे बनाया था, I want to thank all other technical persons who are involved in this lecture series of corporate laws. And at last, as a person of corporate law, OSOU is a separate legal entity. It has separate entity from its members. So I want to thank the OSOU for giving me an opportunity to deliver this lecture series on corporate law. Next slide. Thank you. Thank you, learners. Thank you for your patient hearing. Thank you. Hello. Hello. Thank you, sir. Sir, there are some questions. The first question is there any operator exist in a share market? Operator? Means, sir, Dealer? no, sir. You told the price rising and falling of share market. So, learner wants to know: is there any operator that exists who? Nobody operates. The software match the buying order and selling order, and the price decides. समझ में आ रहा है? लोग कोई लोग बोल रहा है मैं ये चीज को, सपोज ये शेयर है, सपोज ये बॉटल है, कुछ बोल रहे हैं मैं 5 में खरीदने के लिए तैयार हूं, कुछ बोल रहे हैं 6 में, कुछ बोल रहे हैं 7 में। इस तरह से ऑर्डर का रैंकिंग होगा, बेस्ट बाई ऑर्डर, फिर कुछ लोग बेचना चाहते हैं, बेस्ट सेल ऑर्डर, इन सब का रैंक होगा। सॉफ्टवेयर इसको मैच करेगा, मैच करके इसका प्राइस दिखाएगा। हर घड़ी क्या होता है, बाई ऑर्डर आता है, सेल ऑर्डर आता है, मैचिंग होता है, और जितना क्विक मैचिंग होगा उतना प्राइस जल्दी चेंज होगा, नया प्राइस दिखाएगा। ये मैचिंग कोई आदमी नहीं करता है, ये मैचिंग सॉफ्टवेयर करता है। बीएससी में बोल्ट करता है, एनएससी में नीट करता है, और इसमें जो इंडिया आईएनएक्स में यूरेक्स T7 करता है। Yes, sir. Thank you, sir. There are no human beings. Nobody, no. Yes, sir. No. No human beings rise. They cannot rise, or they cannot put any rise in price or fall in price of any shares. It is the computer software or computer algorithm who actually does all this ups and downs. Order matching. Practically, yes, the buyers and sellers decide the price. Yes. Demand and supply decides the price. Sir, there is another question: how a company delist from the stock market? हाँ, आप अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज आपको डीलिस्टेड कर देगा, या नहीं तो डीलिस्टिंग का एक प्रोसीज्योर है, एक रूल्स है, रेगुलेशन है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अपना कंपनी का शेयर को आपके स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करना चाहता हूं, स्टॉक एक्सचेंज फिर परमिशन देगा, प्रोसीज्योर फॉर डीलिस्टिंग है।
Next. Yes, sir. If sir, there is another question. If BSC and NSC are companies, then can a retail investor buy their shares? Yes, we are buying. मेरे पास है BSC का 5 शेयर है. समझ में आ रहा है क्या? बीएससी का शेयर बेचा जाता है, बीएससी में बीएससी का शेयर बेचा जाता है, एनएससी में एनएससी का शेयर मिलता है. समझ में आ रहा है क्या? वो कंपनीज है, आप भी खरीद सकते हैं, आप भी ओनर हो सकते हैं बीएससी का, बिकॉज दे आर कंपनीज नाउ. Yes, sir. Okay. Sir, one more question. If I bought a company share at rupees 300, then its share declined to rupees 100 per share. After that, the company decided to delist itself from the stock exchange at rupees 100 per share. Then what will be my position as happened with Vedanta Group? बेटा ऐसा नहीं है, आपका 300 में आप इन्वेस्ट किए थे, जब 100 हुआ, 300 तो एक दिन में 100 नहीं हुआ, आप इंतजार करते रहे, सोचे थे क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा, फिर डीलिस्टेड हो गया. ये प्रॉब्लम आपका है. आप 300 में निकल सकते थे मार्केट में, आप नहीं थे, आप ग्रीडी बन गए थे. समझ में आ गया? अल्टीमेटली यू हैव टू सफर. Next. Hello. No, sir, no more questions. And thank you, sir. And with this, we covered all the blocks of corporate legal framework. And for 2 blocks, actually, we already combined the BCom students also. And we actually covered all the blocks of corporate legal framework of MCom 4th semester today. And thank you, sir, for delivering such a informative session, and hope the learners have a clear idea about working of stock exchange as well as the working of SEBI. Okay, so thank you, Biswa Mohan. Thank you, Biswaranjan Mishra, sir. Sorry, and thank you, thank you, Minati madam, for her technical support. And this is the official announcement of closing of the session. And I would like to remind all the learners that please submit your assignments before 14th of June to your nearest study center. Okay, so thank you, sir. Sir, hope to see you again in a different course, and we will be definitely once that you will be taking our most important classes, because the learners are as per the feedback of the learners, we can we are most it is clear that they are so much of they are getting so much of benefits from your class, and they are so satisfied with your class. Okay, sir. Thank you. My pleasure. Thank you, sir, again. Thank you all, and please be disconnected and discharged from the session. Thank you. Thank you.